नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग 2021 के आज के मुकाबले अंतिम दिन है। आज टूर्नामेंट का स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ए का सामना जय भारत हॉकी एकेडमी से हो रहा है और ये मुकाबला राजधानी के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में शुरू होने वाला है। और अब तक के इन दोनों ही टीमों के प्रदर्शन की बात करें तो 5 मुकाबले खेले हैं साई ए की टीम ने, जिसमें 2 में जीत मिली है, 2 में ड्रॉ किया है टीम ने और 1 में हार का सामना करना पड़ा है। और जय भारत हॉकी एकेडमी की टीम ने 5 में से 5 मुकाबले गंवाए हैं अब तक इस टूर्नामेंट में। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव और मेरे साथ हैं कमेंट्री बॉक्स में रविकांत सिंह। रविकांत, स्वागत है। Thank you and good evening to all our viewers. There are 2 umpires, Mohammad Yamin and Ruchika Wankhede. The teams will be brought on in the traditional fashion. White is Sports Authority of India A, Jai Bharat in sky blue. Jai Bharat still looking for their first point in this league. They've conceded 21 goals and scored only 1 goal so far, whereas Sports Authority of India have had a much better showing, 10 goals for and 15 goals for and 3 against them, giving them number 3 position in the 7-team pool, which is being led by Har Hockey Academy, finished with 16 points. Number 2 is Madhya Pradesh with 12 points. Mohammad Yamin going to the goal to the right of us. Ruchika Wankhede on to the left hand side. That's the Jai Bharat Hockey Academy. That's how they line up. Pritika in goal, Preeti in goal, Tamanna, Muskan Elawat, Palak, Lalita the captain, very talented player, Monisha Khushi, and they've also got Gunjan Elawat and the other Khushi. और साई ए की टीम की कप्तानी है अंजना के हाथ में। प्रमिला, सुजीता कुजूर, साक्षी शुक्ला, अनीशा डुंडुंग, हीना बानो, संजना होरो, पूनम मुंडू, प्रीनी कंदर और भाविनी और दीपाली इस लाइनअप में है। मुकाबला शुरू होता हुआ यहां पर हर हॉकी एकेडमी का सामना हो रहा है साई ए की टीम से। आठ नंबर की जर्सी में जय भारत की खिलाड़ी मोनिष्का और खेल शुरू हो चुका है यहां पर। सफेद जर्सी में खेल रही है साई ए की टीम और हल्की नीली जर्सी में खेल रही है हर हॉकी एकेडमी की टीम। पहले ही मिनट में आक्रमण करने की कोशिश साई की टीम की, इस बार काउंटर करने का प्रयास, अपने ही हाफ में गेंद को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश में लगी हैं। पास किया लेकिन वहां पर कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं था। खुशी 13 नंबर की जर्सी में गुंजन अहलावत, गुंजन का खराब पास, बिल्कुल वहां पर कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं था। 11 नंबर की जर्सी में हिना बानो, हिना गेंद को लेकर आगे बढ़ रही हैं। 1-2-1 मामला है, टर्न करना चाहती थी लेकिन खिलाड़ियों ने उनको जगह नहीं दी। एक बार फिर मौका ढूंढ निकाला, स्ट्राइकिंग सर्कल के अंदर पहुंची हिना, लेकिन वहां पर बिल्कुल मुस्तैद हर हॉकी के डिफेंडर खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। पास जरूर कर दिया था प्रीनी कंदीर के लिए, लेकिन प्रीनी ने जगह नहीं तलाशी वहां पर। अंजना डुंडुंग, देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से हिना बानो गेंद को लेकर अंदर आई थी और वहां पर साथी खिलाड़ी को ढूंढना चाहती थी, लेकिन बढ़िया क्लियरेंस डिफेंडर के द्वारा। Preeni Kandir was there at the top of the D, but unfortunately could not control. Umpire Mohammad Yamin signaling that players should move 5 yards away. Hit in for Jai Bharat. Being taken by Gunjan Elawat, but only as far as Sanjana Horo. On the turn, but picked up very well by Jai Bharat, but they are not able to combine just yet, and losing the ball easily in midfield will not help their cause at all. One player that they've got to watch out for and mark very closely is Hina Bano in shirt number 11 for Sports Authority of India. This is Sakshi Shukla, another of those live wire midfielders who will always be trying to move the ball up
Now onto the left hand side. This could be an opportunity. Sanjana Horo, but not able to trap. 16-yard hit for Jai Bharat Hockey Academy. Scoring 1 goal in the 5 games doesn't really inspire too much confidence in Jai Bharat, but they can certainly make life difficult for others. And this time opportunities on the move, trying to hit on the run, and a penalty corner for Sports Authority of India. First one. मैच के तीसरे मिनट में ही पेनल्टी कॉर्नर हासिल कर लिया है। जिस ढंग से दबदबे वाली शुरुआत की थी, यहाँ पर देखिए शॉट लिया था और सीधा डिफेंडर के पैर पर गेंद लगी, कैरिड हुआ और इसका नतीजा ये हुआ कि 5 नंबर की जर्सी में मुस्कान अहलावत रशर की भूमिका में हैं। गोलकीपर जो हैं प्रीति, वो समझा रही हैं चोट थोड़ी सी लगी है, ऐसा लगा कि डिफेंडर के पैर में। 14 नंबर की जर्सी में तैयार हैं इंजेक्ट करने के लिए प्रीनी कंदीर। प्रीनी का इंजेक्शन, वहां पर शॉट, पेनल्टी कॉर्नर लिया गया। बढ़िया बचाव, बेहतरीन बचाव प्रीति का। यहां पर बिल्कुल ढूंढ निकाला था, शॉट ऑन टारगेट था, लेकिन प्रीति की चौकन्नी निगाहें और बढ़िया रिफ्लेक्सेस इसको बचाने में कामयाब रहे। एक और प्रयास, लेकिन ये विफल होता हुआ। ये देखिए प्रीनी कंदीर का इंजेक्शन था और वहां पर गेंद पर बढ़िया नियंत्रण हासिल किया, लेकिन निगाहें चौकन्नी थी प्रीति की। किसी भी खतरे की आशंका को टाला और अब राइट फ्लैंक से आक्रमण करने की कोशिश में थी हर हॉकी एकेडमी की टीम, लेकिन वहां पर गेंद पर कंट्रोल नहीं बन सका जय भारत। यहां पर चूक हुई, वहां पर डिफेंस में आपसी तालमेल नहीं दिख पाया। 9 नंबर की जर्सी में खुशी का क्रॉस, लेकिन वहां पर डिस्पोजेस हुई। और अब अंजना डुंगडुंग जो टीम की कप्तान हैं, गेंद पहुंच गई है 23 नंबर की जर्सी पे। पूजा नागले क्रॉस किया है, फ्लैंक चेंज कर रही हैं, लेफ्ट फ्लैंक पर गई हैं। और इस बार फ्लैंक एक बार फिर चेंज होता हुआ। पूजा के पास गेंद, राइट फ्लैंक पर आगे बढ़ने की कोशिश, लेकिन 1-2-1 सिचुएशन है। मैन मार्किंग अब तक अच्छी की है जय भारत की टीम ने। वहां पर उनके साथ खुशी थी। 2 खुशी खेल रही हैं इस मुकाबले में, 9 नंबर की जर्सी में और 11 नंबर की जर्सी में। हीना बानो का जबरदस्त रिवर्स, लेकिन यहां पर फ्री किक का मौका जय भारत के पास। उनकी खुद की खिलाड़ी ने बीच में इंटरसेप्ट किया, मौका तलाश रही हैं और उनके पक्ष में जाता हुआ यह निर्णय। तेज तर्रार लिया गया शॉट, लेकिन स्टिक से स्टिक टकराई थी और कार्ड दिखाया गया है वहां पर, हरा कार्ड। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो तेज तर्रार खिलाड़ी हिना बानो को ये कार्ड दिखाया गया है। इसका मतलब हिना अगले 2 मिनट तक इस मुकाबले से बाहर रहेंगी और 10 खिलाड़ियों से खेलती नजर आएंगी। साई ए की टीम, रविकांत, ये अवसर है जय भारत के पास की अटैक करने का। Definitely, and it was almost a needless card, trying to argue with the umpire Hina Bano over a decision and possibly getting a dressing down from the manager as well. Jyoti Panchal, the manager for Sports Authority of India A team. Free hit for Jai Bharat. That's Hina Bano in the sin bin. To say 2-minute suspension. Picked up very well inside her own half. Navneet Kaur. Good interception, good pressure there from Jai Bharat. Remember, for about next 90 seconds, Sports Authority of India A are a player short. Can Jai Bharat take advantage? It's going to be the big question. Defense having trouble getting the ball clear. Better control. Pushed forward by Gunjan Ahlawat. With the defense easily taking charge. Anjana Dungdung, the captain, on the right wing. On the left hand side is Anisha Dungdung. Forward pass. Through ball for Sanjana Horo. Free hit.
Sports Authority of India trying to dominate, but they've been denied any opportunity apart from that one penalty corner. 16-yard hit signaled by umpire Mohammad Yamin. Absolutely no hurry, Jai Bharat, because they know that as long as the ball is in their half, they could take their time. Once again on the attack, Jai Bharat will be moving up, trying to move up and earn a penalty, a free hit. 9 नंबर की जर्सी में गेंद को लेकर आगे बढ़ रही हैं खुशी। लेफ्ट फ्लैंक से आक्रमण करने की कोशिश, लेकिन 1 बनाम 2 का मामला था और बढ़िया डिफेंस। एक बार फिर हिना बानो मैदान में आ गई हैं। 11 नंबर की जर्सी में तेज तर्रार खिलाड़ी गेंद को पास किया था, लेकिन डिस्पोजेस हुई। मौका हो सकता है यहाँ जय भारत के पास। बिल्कुल स्ट्राइकिंग सर्कल के ऊपर पहुंच गई थी और फ्री हिट मिलता हुआ जय भारत की खिलाड़ियों को बैक पास किया है। वहां पर दूर से क्रॉस लेने की कोशिश, लेकिन बढ़िया वहां पर स्टिक वर्क था। उम्मीद कर रही थी कि किसी भी तरह गेंद डिफेंडर के पैर पर टकराए और उसके बाद पेनल्टी कॉर्नर मिले, लेकिन ऐसा कुछ संभव हो नहीं सका। 2 खिलाड़ियों से घिरी हुई हैं 6 नंबर की जर्सी में सुजाता कुजूर। एक बार फिर आक्रमण पर जय भारत की खिलाड़ी, वहां पर मौका हो सकता है। खुशी हैं लेफ्ट फ्लैंक से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बिल्कुल उनको रोक दिया एक ढंग से। पूजा का क्रॉस ढूंढ निकाला है हिना बानो को। हिना बानो समय ले रही हैं, खुद ही राइट फ्लैंक से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं। हिना बानो का क्रॉस वहां पर ढूंढा प्लेयर को। 16 नंबर की जर्सी में वहां मौजूद थी भतेरी, लेकिन कंट्रोल नहीं था वहां पर। अब तक जो समय बीता है इस पहले हाफ में, 8 मिनट से ज्यादा का जो समय बीता है, उसमें दोनों ही टीमों ने अवसर बनाए हैं, लेकिन 20 साबित हो रही है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम। इंटरसेप्शन वहां पूजा का, गेंद को लेकर आगे बढ़ रही हैं। सपोर्ट की तलाश, सपोर्ट मिला भी वहां पर हिना बानो के रूप में, लेकिन डिफेंडर से घिरी हुई हिना के पास मौका हो सकता है, लेकिन फ्री हिट मिलता हुआ यहां पर जय भारत को। बीच में इंटरसेप्ट किया, एक और आक्रमण करने की कोशिश, इस बार लेफ्ट फ्लैंक को चुना है। सपोर्ट वहां मौजूद है, स्ट्राइकिंग सर्कल के अंदर पहुंच गई हैं, लेकिन बढ़िया डिफेंस वहां पर। प्लेइंग एरिया के बाहर गेंद को पहुंचाने में सफल। दबाव बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे साई ए की टीम अपने रंग में खेलती हुई नजर आ रही है। Tremendous pressure being exerted by Sports Authority of India, probably a little over anxious now because more than almost 9.5 minutes gone in the first quarter and they have not yet been able to break the deadlock. Left hand side attack, forward pass to Sanjana Horo. Sanjana Horo stopped wrongly, so a free hit. Try and switch flanks, no dispossessed, but hitting the foot, free hit for SAI. Straight ball into the striking circle, no damage done, 16-yard hit. 5 minutes remaining in the first quarter, we are still locked goalless between Sports Authority of India A team, that's the Sports Authority of India goalkeeper Pramila Kumari, hasn't had too much to do so far, but neither has Preeti. जी हाँ बिल्कुल, लेकिन अब तक का जो प्रदर्शन रहा है उसमें साई ए की टीम 20 साबित हो रही है। मिडफील्ड से जो अटैकिंग थर्ड के बीच कोऑर्डिनेशन है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है हॉकी में, और वो देखने को मिला है साई ए की टीम के द्वारा। बहुत कम अवसर पर जय भारत की टीम फॉरवर्ड खेलने गई है, और जब भी गई है वहाँ पर वो मूवमेंट में दिक्कत हो रही है। 8 नंबर की जर्सी में इस समय गेंद को लेकर आगे बढ़ रही हैं सोनम ने गेंद को पास किया हिना बानो, लेकिन नियंत्रण नहीं था हिना बानो का अपने शॉट पर। इस बार राइट फ्लैंक से आगे बढ़ने की कोशिश, नियंत्रण गंवा बैठी हिना बानो। कमाल का स्टिक वर्क दिखाती हुई यहाँ पर गेंद को पास किया है पूजा के पास। पूजा गेंद को लेकर आगे बढ़ रही है, एक खिलाड़ी वहां मौजूद है, उनको छकाया, स्ट्राइकिंग सर्कल के अंदर पहुंची, लेकिन अभी भी प्ले कॉल किया गया है। पूजा मौजूद थी वहां पर, लेकिन तारीफ करनी होगी वहां पर जय भारत के डिफेंडर की, घबराती नहीं हैं, क्लीन डिफेंस करती हैं, और जब आप पर एक के बाद एक दबाव बनता जाता है तो क्लीन डिफेंडिंग बहुत ज़रूरी हो जाती है। आसान नहीं होता है, विषम परिस्थितियों में खुद को शांत रखना, धैर्य बनाए रखना, संयम के साथ खेलना आसान नहीं होता है, लेकिन जो कोचेज़ होते हैं, जो मेंटल ट्रेनर होते हैं, वो इन बातों का ध्यान रखते हैं।
लेफ्ट फ्लैंक से आक्रमण करने की कोशिश की है, टॉमा हॉक लगाना चाहती थी लेकिन वहां पर ब्लॉक किया और किसी भी तरह की संभावनाओं को निरस्त करती हुई। और अब 4 नंबर की जर्सी में तमन्ना का खराब क्रॉस वहां पर, लेकिन संभाला है अंजलि देवी ने। अंजलि देवी गेंद को आगे बढ़ाना चाहती थी लेकिन डिस्पोजेस हुई। एक बार फिर लेफ्ट फ्लैंक पर आक्रमण करने की कोशिश, अंजलि के पास एक बार फिर गेंद पहुंची है। अंजलि ने साथी खिलाड़ी को ढूंढ निकाला लेकिन हिना बानों से घिरी हुई हैं वो। लेफ्ट फ्लैंक पर गेंद आई है और 1 बनाम 2 का मामला था। बढ़िया क्रॉस करना चाहती थी, वहां पर बीच में खिलाड़ी मौजूद, लेकिन जय भारत के खिलाड़ियों ने ढूंढ निकाला है 10 नंबर की जर्सी में अंजलि देवी। अंजलि ने गेंद को आगे बढ़ाया है अपनी साथी खिलाड़ी मोनिक्षा के लिए, लेकिन वहां पर बड़ी चपलता से, चतुराई से साई ए की खिलाड़ियों ने गेंद पर एक बार फिर नियंत्रण बना लिया है। बैक पास किया है, फ्लैंक चेंज करती हुई राइट फ्लैंक पर खेल चल रहा है इस समय। देखना होगा कि रोक पाएंगी या नहीं। रोक लिया है वहां पर 14 नंबर की जर्सी में प्रीनी कंदीर ने। प्रीनी गेंद को लेकर स्ट्राइकिंग सर्कल के अंदर पहुंच गई हैं। वहां पर खराब शॉट और बढ़िया गोल लाइन क्लियरेंस हो सकता है। अब भी गेंद वहां पर घिरी हुई है, भीड़ जमा हो गई है। देखना होगा कि क्या इशारा करते हैं अंपायर, और अंपायर का इशारा है पेनल्टी स्ट्रोक का। और ये बहुत ही शानदार अवसर होता है हॉकी में बढ़त बनाने के लिए रविकांत। Well, couldn't have asked for more. They were doing just about everything right and finally earning a penalty stroke. Nearly 13 minutes gone in the first quarter. So Sports Authority of India will go ahead thanks to that penalty stroke converted by number 8 Sonam, and the lead will settle their nerves because Jai Bharat is a team which has not scored too many goals. There you see the penalty stroke once again being converted rather easily by Sonam as play resumes. We are under 2 minutes remaining in the first quarter. Sports Authority of India A1, Jai Bharat nil. I think the first 10 minutes we saw a lot of hectic action, Anand, and that was because Sports Authority of India actually looked a little over anxious to try and get the goal. जी हाँ बिल्कुल, और जो पेनल्टी स्ट्रोक मिला उसमें एक तरह से बहुत सारे खिलाड़ी एक जगह पर जमा हो गए थे और जिस कारण ये पेनल्टी स्ट्रोक मिला। फ्लैंक चेंज करने की कोशिश लेकिन गेंद पर नियंत्रण नहीं बना पाई और 8 नंबर की जर्सी में सोनम ने पेनल्टी स्ट्रोक को गोल में तब्दील किया। 15 साल की खिलाड़ी हैं, बहुत ही उज्जवल भविष्य। और यहाँ पर मिडफील्ड में खेल चलता हुआ ज़रूर इस पहले क्वार्टर के बाद रणनीति में बदलाव करना चाहेगी जय भारत की टीम। खुशी के पास गेंद है, सपोर्ट मौजूद है। राइट फ्लैंक पर गेंद बढ़ाया था लेकिन डिफ्लेक्ट होकर पूजा से गेंद प्लेइंग एरिया से बाहर गई है। 1 मिनट से भी कम का खेल बाकी रह गया है इस पहले क्वार्टर में। वहां पर स्टिक वर्क है लेकिन फाउल करार दिया जाएगा और वो विपक्ष में दिया गया। ये देखिए यहाँ पर जो पेनल्टी स्ट्रोक मिला था, यहाँ पर क्लियरेंस ज़रूर आया था, उसके बाद गोल लाइन क्लियरेंस भी था लेकिन बहुत अच्छा बचाव किया 14 नंबर की जर्सी में। और बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है अंपायर को इस तरीके से निर्णय लेने में। और बहुत बढ़िया क्लीन पेनल्टी स्ट्रोक, गोलकीपर के दाईं तरफ, एलिवेशन भी अच्छा था और उसमें गति भी थी जिस कारण से गोलकीपर जो हैं जय भारत की प्रीति वो बीट हो गई और 1 गोल की बढ़त पहले क्वार्टर में ही मिल गई। साई ए की टीम को स्कूप किया राइट फ्लैंक पर। और वहां पर 6 नंबर की जर्सी में सुजाता कुजूर ने एक बार फिर गेंद को बढ़ा दिया है गोल स्कोरर सोनम की तरफ। सोनम का पास लेकिन किसी भी साथी खिलाड़ी को ढूंढ नहीं सकी। हूटर की आवाज कभी भी आ सकती है और इसके साथ इस हूटर की आवाज के साथ ही पहला क्वार्टर समाप्त होता हुआ। पहले क्वार्टर के बाद एकमात्र गोल जो पेनल्टी स्ट्रोक पर सोनम ने किया था, उस गोल के सहारे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ए की टीम ने 1-0 की बढ़त बना ली है जय भारत हॉकी एकेडमी पर। और इस मुकाबले में आगे के हाल के साथ हैं रविकांत सिंह और गौस मोहम्मद। That's confirmation of the score. Sports Authority of India leading 1-0. Penalty stroke converted by Sonam to give Sports Authority of India
the lead, Sports Authority of India wouldn't be feeling too comfortable just yet, because they know Jai Bharat is a team which is still looking for its first points, but they have not been able to really get involved. Penalty corner, that was the only penalty corner of the match so far, taken by Sports Authority of India, but very well negotiated by Preeti. Then this happened, the clearance, there was confusion, and the defender squatted and got the ball on her stick and body. Goalkeeper had absolutely no clue where the ball was. Sonam making no mistake with the penalty stroke that resulted from that melee. A global pandemic that's causing havoc worldwide. Face mask has been found to be the most effective means to fight the spread of COVID-19. World Health Organization and various researchers have also found that masks are critical in mitigating the spread of COVID-19. When you wear a mask, you protect yourself and people around you. Be a part of Mask Up India campaign. Khelo India Women Hockey League 2021 Under 21 Sports Authority of India A का मुकाबला जय भारत. Sky blue is Jai Bharat and white is Sports Authority of India. In possession, Hina Bano pushing it forward. He's got support in the form of Prini Kandir, and yet more pressure. Long corner for Sports Authority of India. स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कंबाइंड होके ज़रूर खेल रही है, पर उनको एक ख़ास बात यह है कि इसमें से काफ़ी खिलाड़ी ऐसे हैं जो नज़रों में है सिलेक्टर्स की. सपना ढेंगरा और ये हिट इन मिली है जय भारत हॉकी एकेडमी. तेज थ्रू देने की कोशिश, उसमें कोई लाभ नहीं. आज के मैच में रेफरी हैं मोहम्मद यामीन और रुचिका वांगखड़े जो कि मध्य प्रदेश की हैं.
जय भारत हॉकी एकेडमी के ये युवा बालिकाएं जो हैं अच्छी हॉकी सीखने का ज़्यादा इरादा है इनका, खेल रहे हैं एक्सपोजर के लिए और बहुत बेहतरीन एक्सपोजर है। जय भारत हॉकी एकेडमी से बॉल छिनी, वहाँ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की प्रेनी कंदीर के पास बॉल पहुंची थी। देख रहे हैं कहाँ पास दे, प्रेनी अंदर की तरफ आए, पास देने की कोशिश की थी पर ये एंटिसिपेट जय भारत के डिफेंडर्स ने कर लिया था। इतनी आसान से वो छोटा पास तो नहीं देने देंगे। तो ये जय भारत हॉकी एकेडमी की टीम, ठंड ज़रूर है, जब आप खेलते हैं तो आपको पता नहीं चलता, लेकिन आप बैठ जाते हैं ओपन में तो ठंड ज़रूर होती है। ऐसे में ज़्यादातर हमने देखा है यूरोप में, बाकी जगह भी, कि जब आप बैठते हैं बेंच पे तो ज़्यादातर खिलाड़ी जो है वो अपर पहन लेते हैं वूलन का, जिससे जब उनको मौका मिलता है तो वो उतार के एकदम मैदान में चले जाते हैं, तो उससे फ़ायदा होता है। क्योंकि बैठने पर जो ठंड लगती है उससे परेशानी भी होती है। फिलहाल बहुत तेज़ी के साथ हिना बानो अंदर गई थी, जिन्हें ये फ्री हिट मिली है। अंपायर मोहम्मद यामीन का जो इशारा है वो फ्री हिट का। ये देखिए हिना बानो, जिन्हें पहले क्वार्टर में कार्ड मिला था, 2 मिनट बाहर बैठी थी। तेज़ तर्रार खिलाड़ी ज़रूर हैं, पर यहाँ पर जय भारत हॉकी एकेडमी ने उनको रोक के रखा है। स्पीड वर्क अच्छा है उनका विद द बॉल। फिर अक्सर भारतीय खेल प्राधिकरण की ए टीम के पास 16 अगस्त की हिट यानी फ्री हिट है जय भारत हॉकी एकेडमी के पास। इनके पास भी चुनौती होगी जय भारत हॉकी एकेडमी की। पहले वो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक को गोल करने से रोकें और बीच में काउंटर अटैक बना के गोल करने की कोशिश भी करें। वैरायटी लानी होगी, अप डाउन खेलना होगा, बॉल का इंतजार नहीं करना होगा, बॉल के लिए जाना होगा। फिलहाल भारतीय खेल प्राधिकरण थ्रू पास, वहां पर हिना बानो के लिए पास, उनका गोलकीपर आगे गए थे और ये दूसरा गोल कंसीड किया जय भारत हॉकी एकेडमी ने। तो भारतीय खेल प्राधिकरण ए टीम दूसरे क्वार्टर में 2 और जय भारत हॉकी एकेडमी। ये देखिए हिना बानो के पास बॉल, अच्छा पास उन्होंने दिया, ये गोलकीपर ने क्लियर किया, रिबाउंड आ गया और प्लेस करके संजना होरो ने गोल कर दिया। 2-0 की बढ़त हो गई। ये देखिए यहाँ रिबाउंड आया, संजना होरो ने आराम से बॉल को जाल में अटका कर 2-0 से आगे कर दिया। फिर मौका है वहां पर, संजना होरो बॉल के साथ उन्होंने बढ़ा दिया है आगे। कोशिश थी लेकिन लॉन्ग कॉर्नर होगा। तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ए टीम 2-0 से आगे है और जय भारत हॉकी एकेडमी संघर्ष कर रहा है, काफ़ी दबाव में है, प्रेशर में है, क्योंकि भारतीय खेल प्राधिकरण की ए टीम ने लगातार दबाव प्रेशर टैक्टिक्स अपना रखी है। वो नहीं चाहते कि जय भारत को जमने का मौका मिले और वो परेशान करें। तो शुरू से ही उन्होंने अटैकिंग हॉकी खेली, पहले क्वार्टर में भी और दूसरे क्वार्टर में भी। और कोच प्रखर पटेल लगातार खिलाड़ियों में बदलाव ला रहे हैं, जिससे कि जहां उनको लगे कि कोई टायर्ड दिखाई दे रहा है उसकी जगह तुरंत दूसरा खिलाड़ी बाहर से अंदर उसको रिप्लेस कर देते हैं टायर्ड खिलाड़ी को। यहाँ पर अंजलि देवी ने बॉल को बढ़ाया था, चेंज किया, बहुत ही बेहतर तरीके से चेस कर रहे हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण की ए टीम जो है बॉल के लिए जा रहे हैं और यहाँ ललिता कप्तान ने पास दिया, दाएं छोर से अच्छा अवसर हो सकता है अगर कोशिश करें जय भारत हॉकी एकेडमी। ये मिली बॉल ललिता कप्तान को, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बॉल लेके मूव किया था, तेज कोशिश डिफ्लेक्शन की, वहां पर ललिता कप्तान वहां पहुंच गए थे तो खतरनाक तरीके से उठी थी। यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं नेहा और माफ़ कीजिए दीपाली एंड पूजा इंतज़ार कर रहे हैं। गए दीपाली अंदर जा चुकी हैं और पूजा नागले अब अंदर जाएंगी मैदान में। फिलहाल स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया काफ़ी अग्रेसिव तेज गति से खेलने की कोशिश उनकी, दो खिलाड़ियों के बीच में से निकली, पास नहीं दिया, यही वजह है कि बॉल उनसे छिन गई थी। बॉल मिल गई वहाँ तमन्ना ने आगे बढ़ाया था खुशी के लिए, खुशी 15 वर्षीय यहाँ पर
अच्छा मौका है उधर, लेकिन ये कोई लाभ नहीं। खेलो इंडिया वुमेन हॉकी लीग 2021 अंडर 21 मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में, और आप देख रहे हैं डीडी स्पोर्ट्स पर इस मैच को। आज के मैच के अंपायर हैं मोहम्मद यामीन और रुचिका वांगखड़े। रुचिका वांगखड़े जो है वो मध्य प्रदेश से हैं और मोहम्मद यामीन जो हैं वो दिल्ली से हैं। इसके अलावा स्कोरिंग जज है सुकन्या रावत और टाइमिंग जज हैं सुधा गुप्ता, टेक्निकल ऑफिसर अमर सिंह नेगी, रिजर्व अंपायर सुमन। कॉर्नर हिट, बल्कि फ्री हिट है, लॉन्ग कॉर्नर है और ये अच्छा अवसर हो सकता है। लॉन्ग कॉर्नर से कॉर्नर की कोशिश करनी होगी क्योंकि फील्ड गोल मुश्किल नज़र आ रहा है। जय भारत हॉकी एकेडमी का दूसरे क्वार्टर में लगभग 8 मिनट के करीब का समय शेष है और भारतीय खेल प्राधिकरण की ए टीम काफ़ी संगठित होकर खेल रही है, पर अभी तक उनको 2-0 की बढ़त मिली है। और कोशिश यही है जय भारत हॉकी एकेडमी की कि पहले उनको रोकें और उसके बाद काउंटर अटैक पे गोल करें। तो अच्छी रणनीति है, कोई ख़राब रणनीति नहीं है। कोच सुभाष चौहान हैं जय भारत हॉकी एकेडमी के और प्रखर पटेल कोच हैं भारतीय खेल प्राधिकरण की ए टीम को। तो इसमें काफ़ी टैलेंटेड खिलाड़ी देखने को मिल रहे हैं। हिट एंड वहाँ ली, सपना भेंगरा ने हिट एंड मिली भारतीय खेल प्राधिकरण की ए टीम को, जल्दी से लिया, टाइम ज़ाया नहीं कर रहे हैं। पूजा नागले के पास बॉल थ्रू, उन्होंने ठीक कोने से बढ़ाया तनुजा के पास, तनुजा टोपो ने क्रॉस किया था। हिट इन जय भारत हॉकी एकेडमी के खिलाफ भारतीय खेल प्राधिकरण की ए टीम को दिल्ली के मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में। ये देखिए यहाँ क्लियर किया था गोलकीपर ने। अभी भी अफसर भारतीय खेल प्राधिकरण की ए टीम के पास पूजा नागले से बॉल छिन गई है। क्या काउंटर अटैक जय भारत हॉकी एकेडमी तरीके से बना पाएगी? कोशिश की मुस्कान अहलावत ने, मुस्कान अहलावत बॉल के साथ, मोहम्मद यामीन अंपायर, इशारा था उनका फ्री हिट का। फ्री हिट फिर मिली है जय भारत हॉकी एकेडमी को और समय बीत रहा है दूसरे क्वार्टर में। लगभग 6.25 मिनट यानी 6 मिनट 15 सेकंड का समय शेष है। गोलकीपर प्रीति और फिर फिलहाल नवनीत कौर के पास बॉल है, छिन गई नवनीत कौर से। मौका है भारतीय खेल प्राधिकरण के पास स्कोर करने का, बीच में ब्लॉक किया अच्छे तरीके से तमन्ना ने और ये काउंटर अटैक की कोशिश, लेकिन फिर रोका स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के खिलाड़ियों ने। मिडफील्ड में ही रोक रहे हैं जय भारत हॉकी एकेडमी को, लेकिन यहाँ रोक नहीं पाए रवि, अन्यथा अगर रोकते तो शायद एक और मुश्किल होती है। Definitely Sports Authority of India throwing everything into attack. They want to increase the lead as much as they can, but Jai Bharat have stood firm, and a big part of that has been played by the goalkeeper Preeti. At least brought off 3 good saves. Change of flanks for Jai Bharat. Going on the right hand side. Forward for Khushi 9. Good turn, good stick work, but unfortunately she's going in the wrong direction. Now down the middle. Good interception and picked up by Bhumi Tiwari. Help comes in the form of Anjali Devi. Jai Bharat on attack. Can they make something out of this? Pressure on Bhumi Tiwari. Anjali Devi and Lalita, the captain for Jai Bharat, comes in to assist. Down the goal end line, trying to get it, and a penalty corner. So the first penalty corner for Jai Bharat taken very, very smartly right in the corner, because the defender was standing right behind her, and the player, there you see, blocked by the captain Anjana Dungdung and just pulled it back onto her foot. Very, very cleverly done. Khushi 15 goes to inject. There's it short. Strike. Khushi 15 and deflection. Goalkeeper was beaten, but long corner. The deflection, had it been in the right direction, would have created a lot of problems.
under 4.5 minutes to go. Good control, good spell of attack. Khushi 15 now pulling the ball in. We call them Khushi 15 and Khushi 9 because that's the shirt numbers they wear. Both the Khushis playing in the forward line for Jai Bharat. Picked up by Khushi 9. Trying to get inside the striking circle but not successful. Picked up by Sports Authority of India and moving forward. Manita. Not trapped cleanly. Hit in for Jai Bharat. Good spell of pressure from Jai Bharat. Unfortunately, they had the opportunities but were unable to make the final connection. There you see the penalty corner once again. Hard hit taken onto the pad. Khushi 15 had the chance and then it was a deflection of the stick of Bhumi Tiwari. Could not keep it in control. Sakshi Shukla into the D, but no player able to put the stick in. Just over 3 minutes remaining for the interval. Long hit to nobody in particular. Relieves the pressure for some time on Jai Bharat goal. But they had a good 2.5 minute spell when they put Sports Authority of India under a lot of pressure. This time again picked up very well by Khushi 9. A bit of stretching from Anjali Devi. Intercepted very well but not for long. Bit of body play but umpires do not take cognizance. Navneet Kaur pushes it forward. Jai Bharat losing possession rather easily. Long scoop. And Sports Authority of India have the opportunity to attack. This is Sanjana Voro inside the striking circle. Defense under pressure. Reverse hit and a foul meanwhile for blocking. Shielding the ball with the body inside the striking circle. And umpire Mohammad Yamin immediately blew for a foul against Sports Authority of India, who come into attack once again. Under 2 minutes to go. Clip towards the left hand side. No player that side. And the shot goes straight over the end line for 16-yard hit. Jai Bharat absolutely no hurry to resume the game. Muskan Elawat. Tamanna, beg your pardon. Tamanna it is. To Gunjan Elawat on the left flank. Moving back. Get it away. Long hit but intercepted very well by Sports Authority of India's Manita. Unfortunately, forward push onto the left hand side. This is Tanuja Topo driving in into the striking circle. This could be dangerous. Onto the body, and it's a penalty corner because the ball rose off the stick, and this is penalty corner number 2. It was played on the forward's body. There you see the ball coming in, and as Gunjan Elawat tried to play the ball up, it was a penalty corner because the ball rose dangerously off the stick. So the second penalty corner for Sports Authority of India. Taking their time. Single battery, and this time goalkeeper once again alert to the danger, and it's been disallowed because the goalkeeper blocked it, and then 2 players from Sports Authority of India A team charged. There you see the attempt once again, taken very well. Goalkeeper blocks it, and then 2 players charging but getting on the back stick, and free hit. Meanwhile, we've got a card now for a Jai Bharat player, green card. So 2 minutes, Jai Bharat will be down to 10.
Long corner. Bhavani. Onto the foot, so no damage done. Jai Bharat can afford to breathe easy. Seconds remaining, and that is the hooter signaling the end of quarter number 2. And 1 goal in each quarter gives Sports Authority of India a 2-0 lead at the end of the second quarter, going into the half time. And Goss, it must be said that Jai Bharat will be pretty satisfied with what they've done so far, restricted Sports Authority for just 2 goals. बेशक, क्योंकि उन्होंने रोका है। भारतीय खेल प्राधिकरण ये टीम काफ़ी बेहतर टीम है, बड़ी कंबाइंड टीम है और हर पोजीशन पे बेहतर खिलाड़ी हैं। 2 गोल से भारतीय खेल प्राधिकरण आगे है जय भारत हॉकी एकेडमी से मध्यांतर तक। और ये हाइलाइट्स हैं मुख्य अंश पहले 2 क्वार्टर्स के। मोहम्मद यामीन और अंपायर जो है रुचिका वांगखड़े, स्पोर्ट्स अथॉरिटी इंडिया ए और जय भारत हॉकी एकेडमी। ये जय भारत की टीम पेनल्टी कॉर्नर, भारतीय खेल प्राधिकरण को कोशिश की, बचाया गोलकीपर ने और फिर कोशिश। ये गोलकीपर गए थे लेकिन सही से क्लियर नहीं कर पाए थे और ये होल्ड किया था, जिस तरह से पेनल्टी स्ट्रोक दिया था अंपायर ने और ये गोल किया था बड़ी आसानी के साथ। वहाँ पर सोनम ने, भारतीय खेल प्राधिकरण की सोनम, और उसके बाद ये हिना बानो ने क्रॉस दिया था। ये बहुत आसानी से प्लेस करके दूसरा गोल किया था। तो इस तरह भारतीय खेल प्राधिकरण 2-0 से आगे है जय भारत हॉकी एकेडमी से। पेनल्टी कॉर्नर जय भारत हॉकी एकेडमी को मिला था। अच्छी कोशिश थी, रिबाउंड आई थी, लेकिन वो जो आई थी खुशी सही से ले नहीं पाई। एक बार फिर पेनल्टी कॉर्नर खेलो इंडिया का, ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। तो इस तरह ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में स्कोर भारतीय खेल प्राधिकरण 2, जय भारत हॉकी एकेडमी 0। A global pandemic that's causing havoc worldwide. Face mask has been found to be the most effective means to fight the spread of COVID-19. World Health Organization and various researchers have also found that masks are critical in mitigating the spread of COVID-19. When you wear a mask, you protect yourself and people around you.
Be a part of Mask Up India campaign. एक बार फिर स्वागत है। नमस्कार, मैं गौस मोहम्मद अपने साथी रविकांत सिंह और आनंद श्रीवास्तव के साथ मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम से आपका स्वागत करता हूं। खेलो इंडिया वुमेन हॉकी लीग अंडर 21, जिसमें स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया अभी तक हाफ टाइम तक 2 गोल से आगे है जय भारत हॉकी एकेडमी से। मध्यांतर के बाद का खेल शुरू होगा। दोनों टीमें मैदान में हैं और अंपायर भी मैदान में अभी कुछ सेकंड हैं। जैसे ही स्कोर बोर्ड में 2 सेकंड और ये अब मैच शुरू। भारतीय खेल प्राधिकरण एक मेथड के साथ, स्पीड के साथ, आपस में तालमेल रखते हुए ज़रूर खेल रहा है, पर जय भारत हॉकी एकेडमी ने जो दूसरा क्वार्टर खेला बेहतर खेला था और पेनल्टी कॉर्नर भी हासिल किया था। फ्री हिट भवानी के पास, थ्रू पास उनका अच्छा थ्रू पास था लेकिन ब्लॉक कर ली गई बॉल। और अभी फिलहाल प्रीनी कंदीर के पास बॉल थी। अच्छे जज्बे के साथ जय भारत हॉकी एकेडमी मध्यांतर के बाद आई है और उनका ये जज्बा की पूरी कोशिश करनी है कम से कम गोल कंसीड करने और आगे गोल भी करना है। फिलहाल मौका है संजना होरो के पास, पेनल्टी कॉर्नर। पहले ही मिनट में पेनल्टी कॉर्नर तीसरे क्वार्टर में प्राप्त किया। भारतीय खेल प्राधिकरण की ए टीम ने जय भारत हॉकी एकेडमी के खिलाफ खेलो इंडिया वुमेन्स हॉकी लीग 2021 अंडर 21 मैच के अंपायर हैं मोहम्मद यामीन और रुचिका वांगखड़े। ये देखिए कैसे पेनल्टी कॉर्नर हुआ था या कैरेट हुआ था 4 नंबर तमन्ना का जय भारत हॉकी एकेडमी की। और ये पुश करने के लिए तैयार भारतीय खेल प्राधिकरण। पुश किया, तेज कोशिश और शानदार गोल किया अंजना डुंगडुंग कप्तान ने। बेहतरीन तेज हिट और कोई अवसर नहीं। तीसरा गोल मिला भारतीय खेल प्राधिकरण की ए टीम को पहले ही मिनट में तीसरे क्वार्टर के। Anjana Dungdung, shot number 2. There you see the strike from Anjana Dungdung, and Sports Authority of India score easily with that goal. Full back, showing her power. Low hit off the pad but into the netting, and it is score goes up to 3-0 for Sports Authority of India. Good start. Another opportunity on the turn, tomahawk, but just wide. So within a minute they have managed to improve their lead to 3-0. Third penalty corner being converted. 1 out of 3 is the conversion rate for Sports Authority of India. Picked up well by Palak. Trying to move forward. Khushi 15 not successful. Foul goes against her. Manita. Sports Authority of India have a free hit. Manita going down the line, picked up very well by Sonam, scorer of one of the goals. Sonam trying to come back in, and a penalty corner. Smart play. Penalty corner number 4 for Sports Authority of India. Now to wait and see. There you see Sonam going in and then pulling the ball straight onto the foot of the defender. Again, it was Tamanna at the receiving end. 5 players allowed to defend the goal, including the goalkeeper. 5 on top of the D. Once again, it's Anjana Dungdung. Anjana Dungdung with a slap hit and penalty corner yet again. Penalty corner number 5.
straight onto the foot of the defender. Slap hit, but going straight to the defender's foot. No doubt in the mind of umpire Ruchika Wankhede. There you see the four defenders plus goalkeeper. This time played it short. Variation attempted, the goalkeeper is there, and a reverse gives them the fourth goal. Very well done on the left, reverse hit. Very, very well done. Reverse the short player, and immediately there you see players charging in, waiting for the rebound and making absolutely no mistake with that opportunity. Good finish from Sports Authority of India. 4-0 the lead to on the turn. Sports Authority of India taking possession. So good start to the third quarter for Sports Authority of India. Scored 2 goals within a space of 3 minutes, and that shows that what the planning has been for the side. Tanuja Topo. Free hit for Jai Bharat. Anjana Dungdung, the captain, scored the third goal for her side. Playing it forward. Taking her time now. Sports Authority of India have settled very well. Sanjana Horo. Good turn. Fourth goal has been credited to Sonam. So Sonam has got 2 goals in this tournament, in this match so far. Sujata Kujur. Not able to release the ball quickly enough. Khushi 9 picks it up. Khushi 9 under pressure from 3 players, and finally possession snatched away from her. Back. Sports Authority of India players showing much more purpose now. Nearly kept it inside. Bhateri. But Goss, it must be said that in the third quarter there is more purpose in the play for Sports Authority of India. बेशक काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं जय भारत हॉकी एकेडमी, और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक बार फिर से वापसी कर ली है और 4 गोल अपनी गोलों की संख्या पहुंचा दी है। खेलो इंडिया वुमेन हॉकी लीग 2021 में अंडर 21 में भारतीय खेल प्राधिकरण की ए टीम जय भारत हॉकी एकेडमी से 4-0 से आगे। फिलहाल मनीता ने बढ़ाया था बॉल को भवानी के लिए, भवानी ने थ्रू देने की कोशिश की थी, ठीक से ब्लॉक किया, लेकिन वहां पर ललिता कप्तान जूझ रही हैं बॉल को पाने के लिए। फ्री हिट मिली जय भारत हॉकी एकेडमी को। होल्ड करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, लगातार वो जो योजनाएं बना रहे हैं वो इतनी प्रभावी साबित नहीं हो रही। फिलहाल बॉल पहुंची भात्री के पास, भात्री ने जाने दिया बॉल को संजना होरो के पास। संजना होरो यहाँ पर पहुंची थी, संजना होरो जय भारत हॉकी एकेडमी कोशिश कर रही है पिछले 1-2 मिनट से कि प्रेशर बनाए भारतीय खेल प्राधिकरण की ए टीम पर। रोका पर लगता नहीं है, और फ्री हिट भारतीय खेल प्राधिकरण की ए टीम को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम। फ्री हिट सपना, भारतीय खेल प्राधिकरण की सपना ने थ्रू पास बहुत अच्छे तरीके से वही रोक लिया, जाम कर दिया बॉल को, अपनी स्टिक से चिपका लिया था। फ्री हिट मिली
भारतीय खेल प्राधिकरण को। अच्छा पास वहाँ भात्री के पास, भात्री अपने आप को पोजीशन सही करती हैं और ये बहुत अच्छा पास, और अच्छा पास था तनुजा टोपो के पास। उन्होंने माइनस ज़रूर किया था पर मिल गया जय भारत हॉकी एकेडमी को और अवसर है उनके पास। फ्री हिट मिली है जय भारत हॉकी एकेडमी। आज के मैच के अंपायर हैं रुचिका वानखेड़े मध्य प्रदेश की और दिल्ली के मोहम्मद यामीन। बॉल को बढ़ा दिया खुशी ने और ये फिर बॉल छिन गई है संजना होरो बॉल के साथ 3 खिलाड़ियों से जूझते हुए। यहाँ सुजाता खजूर ने बॉल को आराम से पहुंचा दिया था हीना के पास। पर फिलहाल जय भारत हॉकी एकेडमी हिट इन मिली है वहां पर। खेलो इंडिया वुमेन हॉकी लीग 2021 अंडर 21 और काफ़ी प्रतिभाशाली खिलाड़ी खेलो इंडिया की इस लीग में देखने को मिले हैं जो आगे आके सीनियर वर्ग में अपनी जगह बना सकते हैं। फिलहाल मनीता के पास बॉल, भारतीय खेल प्राधिकरण की मनीता ने बॉल को बढ़ा दिया। अंजना डुंगडुंग जो कप्तान है माइनस करना चाहती थी और पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया भारतीय खेल प्राधिकरण ने। यहाँ पर रुचिका वानखेड़े का इशारा था कि ये पेनल्टी कॉर्नर है। मध्य प्रदेश की रहने वाली रुचिका वानखेड़े और अच्छा अवसर एक बार फिर भारतीय खेल प्राधिकरण की ए टीम के पास है। ये देखिए किस तरह से माइनस किया था तनुजा टोपो ने और ये पुश की गई बॉल, तेज कोशिश वहाँ पर अंजना डुंगडुंग की। बहुत बेहतरीन पेनल्टी कॉर्नर लेती हैं अंजना डुंगडुंग, लेकिन प्रीति कामयाब हुई इस बार और तारीफ करनी होगी अंजना डुंगडुंग जो है सीनियर टीम के लिए जा सकती हैं क्योंकि पेनल्टी कॉर्नर लेने में वो अच्छी हैं, सक्षम हैं और आने वाले वक्त में वो और बेहतर खिलाड़ी बन सकती हैं। जय भारत हॉकी एकेडमी, भारतीय खेल प्राधिकरण ने वहाँ कोशिश, ये देखिए किस तरह पेनल्टी कॉर्नर लिया गया और बहुत अच्छी कोशिश इस बार गोलकीपर ने बचाया। अंजना डुंगडुंग ने तेज कोशिश की थी, बची ज़रूर लेकिन आसपास नहीं थी, सीधी गोल के अंदर कोशिश की थी। ये तारीफ करनी होगी प्रीति की कि उन्होंने उसको एंटिसिपेट कर लिया था, बिना विचलित हुए रोका था। ऐसे में रिबाउंड भी आती है, उसमें भी गोल होने की संभावनाएं रहती हैं, उम्मीद रहती है, चांसेस रहते हैं। फिलहाल जय भारत हॉकी एकेडमी मिडफील्ड तक तो आ गए हैं। आगे उन्होंने जो देने की कोशिश की, बीच में ब्लॉक की गई बॉल, आराम से धैर्य से खेलने की कोशिश और ये अच्छा किया जय भारत हॉकी एकेडमी ने। बॉल के लिए गए थे, बॉल लूज बॉल मिल गई वहाँ पर भात्री के लिए। भात्री बाएं छोर में अच्छा खेलने में सक्षम है, फिर भात्री के पास पहुँची, 1-2-1 करके आगे गए थे, ब्लॉक किया बॉल को। जय भारत हॉकी एकेडमी, फ्री हिट मिली है जय भारत हॉकी एकेडमी, छोड़ दिया वहाँ बॉल को और पलक ने भी छोड़ दिया, पीछे से आए हैं फ्री हिट लेने के लिए जय भारत हॉकी एकेडमी के डिफेंडर। देखा उन्होंने इधर उधर और ये फिर बॉल रोकने में कामयाब भात्री ने बढ़ा दिया आगे भवानी को, तेज कोशिश, गोलकीपर ने रोका, रिबाउंड है और पेनल्टी कॉर्नर मिला। रुचिका वानखेड़े ने पेनल्टी कॉर्नर दिया। वहां पर मुस्कान अहलावत बात कर रही हैं रुचिका वानखेड़े से, पर ये देखिए किस तरह कोशिश थी, रोका था गोलकीपर ने, क्लियर भी किया था और यहाँ लगता है कैरिड हुआ है मुस्कान अहलावत का और पेनल्टी कॉर्नर भारतीय खेल प्राधिकरण की ए टीम को। अंपायर तैयार रुचिका वानखेड़े और ये रोक नहीं पाए, तो फ्री हिट मिली है जय भारत हॉकी एकेडमी को। तेज हिट, कोशिश कर रहे हैं कि तीसरा क्वार्टर में कोई और गोल ना हो और थोड़ा सा एग्रेसिव होने की बीच बीच में कोशिश करते हैं, पर डिफेंडर भारतीय खेल प्राधिकरण के काफ़ी सक्षम हैं और वो रोक के वापस आक्रमण करते हैं, यानी काउंटर अटैक करते हैं।
जय भारत हॉकी एकेडमी, कोच प्रखर पटेल भारतीय खेल प्राधिकरण के और सुभाष चौहान जय भारत हॉकी एकेडमी के। फिलहाल बॉल मनीता के पास, भारतीय खेल प्राधिकरण की मनीता, देखा उन्होंने, तेज कोशिश की और रोकने में कामयाब हुए। ये खतरनाक हो सकता है जय भारत हॉकी एकेडमी के खिलाफ मामला, लेकिन अभी भी अवसर था। पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया। रुचिका वांगखड़े ने एक और पेनल्टी कॉर्नर का इशारा किया और भारतीय खेल प्राधिकरण, और ये 9वां पेनल्टी कॉर्नर, ये देखिए पहुंची थी अंजना तनुजा टोपो, और ये पेनल्टी कॉर्नर भारतीय खेल प्राधिकरण किस तरह से लेता है, क्योंकि 9वां पेनल्टी कॉर्नर है और ये एक बार बहुत ही फायदेमंद स्थिति होती है पेनल्टी कॉर्नर हासिल करना, उस पर आपको कामयाब होना चाहिए। पुश, और डुंगडुंग ने फिर कोशिश की थी और लॉन्ग कॉर्नर यानी कॉर्नर हिट। गोलकीपर ने कई मौकों पर जो तेज हिट थी अंजना डुंगडुंग की वो बचाई है, और आगे के लिए रविकांत सिंह। Jai Bharat on the attack from the right flank. Munishka making a solo run, finding a player. This could be an opportunity for and a goal. Jai Bharat have scored against the run of play and managed to put the ball in under pressure, surrounded by defenders, but the ball being put in by Navneet Kaur, it looks like. Navneet Kaur moving in, and Navneet Kaur it is with the final deflection, and that is only the second goal in the tournament for Jai Bharat. Earlier the goal was scored by Khushi 15. रवि, ये बहुत ही अच्छा गोल माना जाएगा, क्योंकि भीड़ में स्कोर करना आसान नहीं होता, और ऐसी टीम जो आपसे 4 गोल से आगे है, भारतीय खेल प्राधिकरण, उनके डिफेंडर अच्छे हैं, पर जय भारत हॉकी एकेडमी की तारीफ करनी होगी। जिस तरह नवनीत कौर ने मौके का फ़ायदा उठाया, ये यकीनी तौर पे दाद के काबिल है। शून्य तोड़ने में सफल हुई। Well, that should be a wake-up call for Sports Authority of India, and once again Jai Bharat on the attack. This time chasing the ball down is Munishka. Yet again Munishka being put under pressure by Anjana Dungdung. Anjana Dungdung will take the free hit. Jai Bharat finally getting onto the scoreboard in this second game. An opportunity. Foul. Good turn by Lalita, but the defense stands firm. Cleared. Bhatri making a good run, looking up. Hina Bano leaves it off for Tanuja Topo. Long corner. Suddenly Sports Authority of India have been stung by that goal. Tanuja Topo once again passing it off to Pooja Nangle. Clock winding down to almost just half a minute remaining in the third quarter. Sports Authority of India lead 4-1. Hit in for Jai Bharat, being taken by Palak. Long hit, but well controlled by the defense. Moving down the middle is Bhavani. And there's the hooter signaling the end of the third quarter. 3 goals we've seen in this quarter. 2 by Sports Authority of India and 1 by Jai Bharat, and score at the end of 3 quarters of play is 4-1 in favor of Sports Authority of India. There you see the goal attempts. This is the penalty stroke that they earned, and penalty stroke converted by Sonam. No problems whatsoever for Sonam. That gave the lead in the
13th minute of play. Then the second goal coming up. This was done very well. Field goal by Sanjana Horo, shirt number 12, making absolutely no mistake. Then came the penalty corner. Anjana Dungdung with the clean strike, low hit, past the goalkeeper's right and into the target, into the boards. That was 3-0. Then the fourth goal, again of a penalty corner, this time off the pads, but Sonam was there to put it back in the rebound, giving them the fourth goal. And then Jai Bharat, against the run of play, under pressure, earned a penalty corner, in the field of play, and then finally Navneet Kaur it was who managed to put the ball in, scoring the second goal of the tournament for Jai Bharat Hockey Academy. A global pandemic that's causing havoc worldwide. Face mask has been found to be the most effective means to fight the spread of COVID-19. World Health Organization and various researchers have also found that masks are critical in mitigating the spread of COVID-19. When you wear a mask, you protect yourself and people around you. Be a part of Mask Up India campaign. Anand, good comeback by Jai Bharat girls. कोशिश तो ज़रूर की है जय भारत की टीम ने कि इस मैच में वापसी करें, लेकिन जो अंतर है वो 4-1 का अंतर है और एक क्वार्टर में इतने सारे गोल करने के लिए आपको सुपर अटैकिंग मोड में खेलना होगा और देखना होगा कि क्या रणनीति होगी। खोने के लिए कुछ भी नहीं है जय भारत की टीम के पास, एक भी मुकाबला वो अब तक इस टूर्नामेंट में जीत नहीं पाई हैं और यहाँ पर चाहेंगे कि टूर्नामेंट का सुखद अंत किया जाए, कम से कम ड्रॉ हासिल करने की भी कोशिश होगी, लेकिन वो भी एक ऐसा मामला है कि बहुत दूर तक जाना पड़ेगा, आखिरी मोमेंट तक लड़ना पड़ेगा, 3 गोल करने पड़ेंगे एक ऐसी टीम के खिलाफ जो चढ़कर हॉकी खेल रही है। साई ए की टीम की बात करें तो मिडफील्ड में खेल चलता हुआ अपने ही हाफ में खेल रही है इस समय जय भारत की टीम। फ्लैंक
चेंज करने की कोशिश, बीच में गेंद को खेला, मौका हो सकता है, लेकिन उससे पहले ही बहुत तेज तर्रार गति से आते हुए 3 नंबर में सपना ने गेंद को अपने कब्जे में लिया और सपना ने गेंद को बढ़ा दिया है। यहाँ पर स्ट्राइकिंग सर्कल के अंदर एक बार फिर मौका बन सकता है। बहुत ही बढ़िया तरीके से छकाते हुए गोल किया है। गोल नंबर 5 है इस समय। तनुजा टोप्पो के स्टिक से आता हुआ यह शानदार गोल। जबरदस्त प्रदर्शन। देखिए शुरुआती मिनट में ही, चौथे और अंतिम क्वार्टर के शुरुआती मिनट में ही शानदार गोल किया है। वहां पर पास था हिना बानो का और हिना बानो के पास पर बहुत ही शानदार गोल तनुजा टोप्पो का। तो जो हम बात कर रहे थे कि जय भारत की टीम ने वापसी के संकेत दिए हैं तीसरे क्वार्टर में, उन सभी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है इस गोल ने एक ढंग से रविकांत। Well, definitely, and I'm sure Sports Authority of India was stung by that one goal by Jai Bharat. There you see the goal once again. Hina Bano with the ball, putting it past the goalkeeper, and no mistake whatsoever from Tanuja Topo, and taps it into an open net. Goal number 5 that for Sports Authority of India A team. Remember, 2 Sports Authority of India teams playing in this league, A and B, divided into different pools. B didn't have the best of encounters. They did finish number 2 in the pool encounters behind India Juniors. Jai Bharat once again struggling, but the ball put by Lalita could not find Khushi. 16-yard hit for Sports Authority of India A. B team finished number 2 behind India Juniors with 4 wins, 1 draw and 1 loss, but the A team struggling to stay at number 3. जी हाँ बिल्कुल, पूरे टूर्नामेंट में उस ढंग का प्रदर्शन नहीं कर पाई जिसकी उम्मीद थी। एक बार फिर आक्रमण करने की कोशिश, इस बार मिडफील्ड पे अपने ही हाफ में खेल रही है टीम। जगह देख रही है, लंबा पास, लेकिन सपोर्ट को ढूंढ निकाला है। 1-to-1 सिचुएशन, बैक पास किया है। नज़र बहुत पैनी रखनी होगी आपको, पलक झपकते ही गेंद को रिलीज़ करना पड़ेगा और ये भी देखना पड़ेगा कि आपकी टीम के खिलाड़ी किस पोजीशन में है, कौन सा खिलाड़ी रन बना रहा है और कहां पर गेंद को देना मुनासिब होगा। यहां पर सपना से गेंद मिस जज हुई, सही ढंग से वो कलेक्ट नहीं कर सकी और अब मौका बन सकता है यहां पर जय भारत की टीम के पास। सपोर्ट को ढूंढती हुई माइनस किया है लेफ्ट फ्लैंक पर, बीच में जरूर किया था गोलकीपर का अच्छा बचाव। अब भी खतरा पूरी तरीके से टला नहीं है, लेकिन कमाल का प्रदर्शन वहां दाद देनी होगी प्रमिला कुमारी की। डिफेंडर ऑलमोस्ट जो हैं वो बीट हो गए थे और प्रमिला ने बहुत ही सूझबूझ और चतुराई का नमूना वहां पर पेश किया। अपने ही हाफ में स्ट्राइकिंग सर्कल के बिल्कुल पास 2 नंबर की जर्सी में कप्तान अंजना डुंडुंग वहां पर खेल रही हैं और अब फ्री हिट अंजना के लिए। तो बहुत ही संतुलित खेल का प्रदर्शन, नपातुला खेल। साई ए की टीम की बात करें तो दूसरी तरफ अब बहुत डेस्परेशन दिखने लगा है रविकांत जय भारत की टीम के नज़रिए से अगर देखें तो। Well, definitely not the way Jai Bharat would have planned things, but at the moment they are on the attack and this could be an opportunity. Kushi 9 arguing with the umpire Mohammad Yamin. She felt that the decision should have gone her way, but to no avail, and good move there from Sports Authority of India A, going towards the right. Ball with Prini Kandir. Haven't seen her too much in action in the second and third quarters, but in the fourth quarter she's definitely joining the attack. Anjana Dungdung pulled back. Sujata Kujur onto the left hand side. This is Anisha Dungdung, the left full back. 16-yard hit for Jai Bharat. 5-1 the lead. Under 10 minutes remaining in this phase 1 of the Khelo India Under 21 Women's Hockey League. There are 2 more phases to be gone through before a champion will be found. As per plans, the final phase will be played in Bhubaneswar. Depends on how things roll out.
because the pandemic times have made things very, very uncertain. Sports Authority of India still mulling over the venue for phase 2, whether Chennai or Bengaluru. लेफ्ट फ्लैंक पर इस समय खेल चल रहा है, माइनस करके ये पास दिया है, वहां पर साथी खिलाड़ी को ढूंढ निकाला है। 15 नंबर की जर्सी में खेल रही हैं वहां पर भवानी ने गेंद को पास किया है। 14 नंबर की प्रीनी कंदीर राइट फ्लैंक से आक्रमण करने की कोशिश, पास जरूर किया है लेकिन वहां पर बढ़िया डिफेंस। लॉन्ग कॉर्नर मिलता हुआ वहां पर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ए टीम को। 6 नंबर की जर्सी सुजाता कुजूर, सुजाता ने पोजीशन किया, माइनस किया है गेंद को भवानी के लिए। भवानी ने गेंद को आगे बढ़ाया, खिलाड़ी को ढूंढ जरूर लिया है, वहां पर मौका बन सकता है लेकिन गलत पास दे बैठी प्रीनी कंदीर। प्रीनी का भी प्रदर्शन बहुत ही लाजवाब रहा है इस पूरे मुकाबले में। एक अटैकिंग मिडफील्ड के तौर पर खेलती हैं, तालमेल बढ़िया बनाती हैं मिडफील्ड और फाइनल थर्ड के बीच में, और कई ऐसे अवसर जेनरेट करती हैं जिससे कि डिफेंस में सेंध लगाई जा सके। 10 नंबर की अनीशा डुंडुंग, अनीशा ने बैक पास किया है अपनी साथी खिलाड़ी सपना को। सपना का एक और बैक पास कप्तान अंजना के लिए। अंजना ने राइट फ्लैंक पर गेंद को बढ़ाया है, लंबा पास देखना है कि रोक पाएंगी या नहीं। हिना बानो से बहुत ज्यादा अपेक्षा थी और बहुत तेज गति से गेंद थी, फास्ट रन भी लगाया था वहां हिना ने, लेकिन गेंद को रोक नहीं पाई। छोटे छोटे पासेस के सहारे आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है जय भारत की टीम, लेकिन सफलता नहीं मिली। वहीं ब्लॉक किया, फ्री हिट मिलेगा। भले ही आप इस मुकाबले में बहुत ज्यादा पिछड़ रहे हैं, लेकिन अगर यहां से 1 और 2 गोल जय भारत की टीम करने में कामयाब होती है तो जरूर थोड़ा सा मनोबल इन खिलाड़ियों का बढ़ेगा जो खेलो इंडिया के तहत बेहतर मंच की तलाश कर रही हैं, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए जी जान से जुटी हुई हैं। सर्द मौसम है दिल्ली में और शाम ढलते हल्की हल्की हवा भी चल रही है, लेकिन इन सब से बेपरवाह ये खिलाड़ी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहती हैं। भारतीय सीनियर चयनकर्ताओं को ये बताना चाहती हैं कि वो भी भारतीय टीम में खेलने की हकदार हैं। हर खिलाड़ी का सपना होता है देश के लिए खेलना, और इस तरह के प्लेटफॉर्म से ही बढ़िया टैलेंट सामने आता है और जो भविष्य में देश को रिप्रेजेंट करता है, देश के लिए उम्दा प्रदर्शन करता है। यहां पर ब्लॉक जरूर किया था लेकिन फाउल करार दिया गया दीपाली के अगेंस्ट। Jai Bharat fighting tooth and nail to try and reduce the margin of defeat, but unfortunately not able to get much success, as once again in the attack mode is Deepali for Sports Authority of India, and the ball deflects just wide. Tantalizingly close but not good enough. बहुत करीबी मामला था, राइट फ्लैंक से आक्रमण हुआ था और उसके बाद बिल्कुल टैप करने की जरूरत थी। ये देखिए, ये पास यहां पर दिया था, मिस जज हुआ। गोलकीपर अपनी लाइन से आगे आ गई। 16 नंबर की जर्सी में वहां पर भ्रातृ मौजूद थी और भ्रातृ अगर थोड़ा सा भी दिशा देने में कामयाब हो जाती तो गोल की संख्या बढ़कर 6 हो जाती। बढ़िया तालमेल दिखाया। गोलकीपर जो थी वहां पर प्रीति अपनी लाइन से आगे आ गई थी डिफेंड करने के लिए, लेकिन उनको भी चकमा देती हुई गेंद आगे बढ़ गई। Good pressure as under 5.5 minutes remaining now. Anisha Dungdung. Jai Bharat picking off. Dalita keeping control, earns a free hit. A respite for Jai Bharat defense. Bit of communication problems, but no damage done. Jai Bharat will move up into attack. Done very well, changing flanks. This is Anjali Devi. Anjali Devi trying to go down the middle. Free hit earned for Jai Bharat. Navneet Kaur scored the only goal for them in this match, and this time going in very well was Anjali Devi. Unfortunately for her, the ball came straight. There you see the
deception, pulling it back, but the stick came in the way and it was a long corner. ललिता का बढ़िया प्रयास था टीम की कप्तान, लेकिन वहां पर स्टिक वर्क हुआ। पैर पर गेंद लगती तो जरूर वहां पर पेनल्टी कॉर्नर की संभावना बन सकती थी, लेकिन अब काउंटर 8 नंबर की जर्सी में सोनम, जिन्होंने पेनल्टी स्ट्रोक को गोल में बदला था। 22 नंबर की जर्सी में दीपाली की दौड़ है, लेकिन चतुराई भरा डिफेंस देख लीजिए। जान रही हैं कि गेंद की गति से दीपाली बीट हो जाएंगी, तो तमन्ना ने जाने दिया प्लेइंग एरिया के बाहर। कभी कभी एंटिसिपेशन बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है किसी भी खेल में, जजमेंट बहुत अहम हो जाता है। माइनस किया, आगे ले जाना चाहती थी, लेकिन जिस ढंग से खिलाड़ी ने चकमा दिया था उससे अंपायर संतुष्ट नहीं थी। एक और फ्री हिट मिलता हुआ वहां पर जय भारत की खिलाड़ियों को, लेकिन जय भारत की टीम के पास अब बहुत ही कम समय रह गया है। लगभग 3.5 मिनट का समय रह गया है, और इस 3.5 मिनट में टीम 1 या 2 गोल और करना चाहेगी। अच्छी यादों के साथ समापन करना चाहेगी इस टूर्नामेंट का। लेफ्ट फ्लैंक से आक्रमण किया है, बहुत तेज वहां पर शॉट लगाना चाहती थी 7 नंबर की जर्सी में टीम की कप्तान ललिता को ढूंढना चाहती थी, लेकिन ललिता पीछे रह गई और जिसका कोई लाभ नहीं मिला। अब भी खेल जो है वो लेफ्ट फ्लैंक पर चल रहा है। ललिता का बढ़िया टर्न वहां पर, लेकिन साथ ही खिलाड़ी को ढूंढने में नाकामयाब रही। और अब एक बार फिर काउंटर करने की कोशिश, बहुत तेज गति से आगे बढ़ रही है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम। एक चूक हुई, अगर वहां पर गेंद कलेक्ट हो जाता तो फिर मुश्किल में आ सकती थी जय भारत की टीम। यहां पर सपोर्ट मौजूद है। मुनीक शाह गेंद को लेकर आगे जा रही है स्ट्राइकिंग सर्कल के अंदर। ललिता मौजूद, लेकिन ललिता को डिस्पोजेस किया। गेंद चली गई है सोनम के पास, एक खिलाड़ी को छकाया। सोनम की गति काफी अच्छी है, आगे जा रही हैं, सपोर्ट मौजूद है वहां पर, लेकिन होल्ड किया खुद को। एक बार फिर सोनम के पास गेंद है, लेफ्ट फ्लैंक से आगे जाने की कोशिश। फर्स्ट टच सही नहीं था, लेकिन मैनेज कर लिया है उसको किसी भी तरीके से। स्ट्राइकिंग सर्कल के अंदर गेंद को जरूर दिया था, लेकिन वहां पर कोई भी साथ की खिलाड़ी मौजूद नहीं थी, और ये बढ़िया अवसर हो सकता है लेफ्ट फ्लैंक से, लेकिन बहुत तेज पास और इसका कोई लाभ नहीं होगा। Skipper Anjana Dungdung there, resuming play for Sports Authority of India as we are clock counting down to well under 2 minutes remaining. Fourth and final quarter in progress. Sapna Bhengra back with Sapna Bhengra. Forward pass, good ball there from Anisha Dungdung onto the left hand side. Bhatri can't come in, but penalty corner. This is penalty corner number 10 for Sports Authority of India. ये 10वां पेनल्टी कॉर्नर है और 1 मिनट 16 सेकेंड का समय रह गया है। देखिए 16 नंबर की जर्सी में थी भ्रातृ, और भ्रातृ ने बहुत ही चतुराई से गेंद को डिफ्लेक्ट करवाया मुस्कान अहलावत से। कैरेड हुआ गेंद वहां पर, और अब एक अवसर है पेनल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील कर 6-1 से बढ़त बनाने की। सोनम गई हैं इंजेक्ट करने के लिए। कुछ पेनल्टी कॉर्नर पे हमने देखा कि इंजेक्शन का जिम्मा जो है वो सोनम संभाल रही हैं। 15 नंबर की जर्सी में भवानी जो हैं वो शॉर्ट कॉर्नर पे हैं। 2 नंबर की जर्सी में यहाँ पर कुछ क्रिएटिव करना चाहती थी कप्तान अंजना डुंगडू। उन्होंने गेंद को साथी खिलाड़ी के लिए बढ़ाया था, लेकिन जिस चतुराई से उन्होंने, देखिए अंजना ने गेंद को साथी खिलाड़ी के लिए बढ़ाया, लेकिन रन नहीं कर पाई उस हिसाब से सपना भेंगरा। अगर वहां पर बढ़िया रन होता तो बात बन सकती थी, तो एक ढंग से पेनल्टी कॉर्नर वेस्ट किया। 11 अंतिम मिनट इस मुकाबले का। सोनम से कैरीड हुआ गेंद वहां पर, और बहुत जल्दी लिया, तेज गति से खेला, लेकिन वहां पर कोई भी खिलाड़ी जो है ऑपोजिशन के स्ट्राइकिंग सर्कल के आसपास भी नहीं है, और ऐसे में इस तरीके के लॉन्ग पास से कोई फायदा होने वाला नहीं है। अपने ही हाफ में खेल रही है टीम, पता है कि बढ़त बहुत ज्यादा है, किसी भी तरह की हड़बड़ाहट करने की जरूरत नहीं है। माइनस करना चाहती थी, कैरिड हुआ गेंद वहां पर। अनीशा डुंगडुंग, अनीशा का बैक पास अंजना के लिए। अंजना समय ले रही हैं, बहुत ही शांत
3 खिलाड़ियों से घिरी हुई हैं, लेकिन फिर भी कोई जल्दीबाजी नहीं करना चाहती। और इसके साथ ही इस हूटर की आवाज के साथ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ए की टीम ने जय भारत हॉकी एकेडमी को 5-1 से करारी शिकस्त देते हुए यह मुकाबला जीत लिया है। खेलो इंडिया महिलाओं की हॉकी लीग अंडर 21 टूर्नामेंट का ये इस चरण का अंतिम मुकाबला था, और जिसमें कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ए की टीम ने 5-1 से जय भारत हॉकी एकेडमी को हरा दिया है। कई खिलाड़ियों ने इस पूरे टूर्नामेंट में अपने प्रदर्शन से चयनकर्ताओं का ध्यान अपनी तरफ खींचा। जो अपनी टीम से खेलने आई थी वहां पर उन्होंने अपने साथी खिलाड़ियों का ध्यान खींचा। कुछ खिलाड़ियों को निराशा जरूर रही होगी, लेकिन खेलो इंडिया का मंच ही एक ऐसा मंच है जहां पर आपको अपनी प्रतिभा को तराशने का अवसर मिलता है। आप बेहतर टीम के अगेंस्ट जब फाइट करती हैं तो आपको अपनी कमियों के बारे में पता चलता है। ये भी समझने का अवसर है ये खेलो इंडिया का मंच की आगे भविष्य की रणनीति क्या होगी, किस तरीके से अभ्यास करना है, फिटनेस पर काम करना है, मूवमेंट पर काम करना है, पासिंग पर काम करना है, या फिर फिनिशिंग की बात करें तो फिनिशिंग पर काम करना है। तो ये बेहतर मंच साबित हुआ है कई खिलाड़ियों के लिए, कई टीमों के लिए। और ये देखिए जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ए की टीम है वो इस समय काफी संतुष्ट हैं अपने प्रदर्शन से, और इस मुकाबले में 5 गोल किए। एक समय ऐसा लग रहा था कि जय भारत हॉकी एकेडमी की टीम वापस आएगी। और इस पूरे मुकाबले के अगर हाइलाइट्स की बात करें तो मुकाबला बहुत ही रोचक अंदाज में शुरू हुआ। दोनों ही टीमों की कोशिश थी कि अंतिम मुकाबला है इस लीग टूर्नामेंट का, तो यहाँ पर जीत के साथ सुखद अंत किया जाए, लेकिन जीतता कोई एक ही है। टक्कर जरूर शुरुआती समय में देखने को मिली, लेकिन बहुत तेज हॉकी का प्रदर्शन किया। शुरुआती लम्हों में पेनल्टी कॉर्नर मिला और यहाँ पर बढ़िया बचाव। उस समय गोलकीपर की तारीफ करनी होगी, उन्होंने कई अवसरों पर बचाव किया। ये पास यहाँ डिफ्लेक्शन जरूर हुआ था और उसके बाद पेनल्टी स्ट्रोक इसी पर मिला था। देखिए कितने सारे खिलाड़ी एक जगह पर जमा हो गए थे और वहां पर बहुत मुश्किल होता है क्लियर करना डिफेंडर के लिए भी। सोनम ने गोलकीपर के दाईं तरफ बहुत ही बढ़िया हवाई शॉट लगाते हुए अपनी टीम को शुरुआती बढ़त दिला दी थी। उसके बाद ही हीना बानो कमाल का खेलती हैं, कमाल का प्रदर्शन करती हैं। यहाँ पर देखिए गोलकीपर का क्लियरेंस जरूर था, लेकिन उसके बाद बढ़िया टैपिंग वहां पर किया था। संजना होरो ने अपनी टीम को 2-0 की बढ़त दिला दी। उसके बाद पेनल्टी कॉर्नर मिले थे जय भारत की टीम को भी, लेकिन वहां पर कोई सफलता हासिल नहीं की। एक के बाद एक दबाव और पेनल्टी कॉर्नर अर्जित करती रही टीम। वहां पर बढ़िया बचाव गोलकीपर प्रीति का था। और ये देखिए यहाँ पर जो कप्तान हैं अंजना डुंडुंग, उन्होंने कमाल का ये शॉट खेला, खुद रोका था, उसके बाद समय लिया, अपने आप पोजीशन किया था और वो तीसरा गोल था। ये देखिए गोल नंबर 4, वहां पर जरूर गोलकीपर रोकने में कामयाब हो गई थी, लेकिन सोनम का बहुत बढ़िया रिवर्स हिट, ये दूसरा गोल था सोनम का इस मुकाबले में। उसके बाद भी आक्रमण रुके नहीं, लेकिन जय भारत ने इसी बीच एक मोमेंटम तोड़ते हुए एक गोल वहां पर निकालने में कामयाबी हासिल की। 11 नंबर की जर्सी में नवनीत कौर की तरफ से ये गोल आया था और उसके बाद भी आक्रमण साई ए की टीम के लिए नहीं रुके। हीना बानो 2 खिलाड़ियों से घिरी हुई थी, लेकिन उन्होंने पास किया और 21 नंबर की जर्सी में तनुजा टोप्पो ने मुकाबले का 5वां गोल किया। इसके बाद भी दोनों टीमों की तरफ से कोशिशें जारी थी, लेकिन कोई गोल नहीं हो सका। 5-1 से जीत स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पक्ष में। Satisfying end for Sports Authority of India A, but they finished number 3 in the pool behind Har Hockey Academy and Madhya Pradesh Hockey Academy. And that brings down the curtain on phase 1 of the Khelo India Under-21 Women's Hockey League at the Major Dhyan Chand National Stadium. Goodbye for now.